So, hi everyone, we are back with another lecture on Indian economic development. This is chapter number 8, the last chapter of Indian economic development. We have two chapters remaining. One is on sustainable development, another one is on unemployment, that we will look after this, because this chapter is an important chapter. We will start discussing this chapter. So what will be our learning objective? इसमें से हमें क्या पढ़ना है? So first thing is, what is the comparative trends in the various economic and human development of India with its neighbors, mainly China and Pakistan. We will be comparing our economy with Chinese economy and Pakistan economy, और क्या क्या comparative changes है between both these countries. Secondly, what are the strategies that these countries have adopted to reach their present state. जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा है हमारा फ्रॉम 1947, तो सिमिलरली चाइना पाकिस्तान की जर्नी भी वहीं पे सिमिलर चालू हो गई थी. सो लास्ट 70-75 ऑड ईयर्स में व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी बोथ दिस कंट्रीज हैव अचीव्ड, ये सब हम देखेंगे. सो वी कैन से दैट why it is important to learn about the economic state of other countries, because since post 1991 reforms we have LPG reforms and we are living in a globalized world or maybe post globalized world. So globalized world में जो economies है different states के, they are interconnected. That's why it is अगर जो भी neighboring countries है जिसके साथ हम border share करते हैं, उनका trade उनकी economic conditions becomes much more important for our own country's health, economic health. That's why we will be studying the economies of China and Pakistan, which are major in our surrounding. And because of this globalization and to safeguard the interest of domestic manufacturers, many countries are coming up, forming up regional institutions as well as global economic groupings like SAARC, European Union, ASEAN, G8, G20, G8, BRICS, etc. So these are all institutions which you will read about much detail in your current affairs. But the main agenda of this lecture is that we need to understand Indian economy in relation with China and Pakistan. So we can say that the developmental path of both China and Pakistan is somewhat related to India, but there is little similarity in the political power, because we have seen that the political power in both all these three countries differ, because India is the largest democracy in the world. We follow the democratic principles. At the same time, in Pakistan, the militarist political power is the structure of Pakistan, because we know that in the post-independence era of Pakistan, majority of the period is ruled by the army rule. Thirdly, China has a communal economy. There is communist government in China. That's why their economy is run on based of principles of communism. Sorry for communalism, it is not communalism, it is communism. So we will look at what are the developmental path both the countries have taken. We know that India and Pakistan have become independent in 1947, and the People's Republic of China, which is present in China, it was established in the 1949. So it was more or less somewhat similar trajectory. Both the countries, all the three countries got independence in the 1950s, and after that what happened to their economy, that we will see one by one. It is commendable or noticeable that all the three countries have focused on planned economic. और इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हमने देखा कि 1951 to 1956 में चालू हुआ, वही चाइना पाकिस्तान में जो हुआ था उसको बोलते हैं मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान इन 1956. चाइना का जो प्लान था वो 1956 से चालू हो गया था पाकिस्तान का, और चाइना का 1953 में चालू हो गया था. तो इंडिया 51, चाइना 53 और पाकिस्तान 56. सो ऑल दीज थ्री कंट्रीज हैव फॉलोड द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी. लेकिन जो है पाकिस्तान और इंडिया की स्ट्रैटेजीज बहुत मोर और लेस सिमिलर थी, सच एज क्रिएटिंग. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि हमने बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया था. एंड पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड सेम कि क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट. अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हमने डिपेंड किया था. सेम वॉज द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान एज वेल. टिल 1980s
ऑल द थ्री कंट्रीज हैज सिमिलर ग्रोथ रेट्स. जो ग्रोथ रेट थे तीनों कंट्रीज के वो 1980s तक सिमिलर थे, लेकिन 1980s में एक मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट आ गया. चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई, पाकिस्तान की थोड़ी कम होती गई, और इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है लेकिन स्लो है. सो द सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड सिमिलर पर कैपिटा इनकम्स, बट करंटली वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो हमें देखना है थ्रू दिस चैप्टर. तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट चाइना. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चाइना. जब भी आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, all the critical sectors of economy, enterprises and lands owned by and operated by the individuals were brought under government control. Because China was a communist country, सारी जो इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली थी. इवन एग्रीकल्चर, लैंड ओनरशिप, ये सब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था. एंड गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग द मार्केट एज वेल एज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर एज वेल. जो फर्स्ट रिफॉर्म आया था चाइना को मेजर इकोनॉमी बनाने में, जो बोला जाता था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना का है, वो 1958 में चालू किया था. इट वाज एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल. कंट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए सो दैट देयर वुड बी स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री. पीपल वेयर एंगेज्ड इन टू सेटअप इंडस्ट्रीज एट देयर बैकयार्ड्स. पीपल को जो भी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया था कि आप आपके घर में छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हो, आपके बैकयार्ड में कर सकते हो. और ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो गए तो दैट दे विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द चाइनाज इकोनॉमी. सेकेंडली, अंडर द कम्यून सिस्टम देयर वाज वन कम्यून सिस्टम. इसमें क्या होता था, कम्यून सिस्टम मतलब क्या है कि ऑल द एग्रीकल्चर, ऑल द फार्मर्स विल पूल देयर, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के साथ ही थी बट वो कल्टीवेट कर रहे थे, तो उसको एक जगह पे कलेक्टिवली टील किया जाएगा, कलेक्टिवली उसमें बीज बोया जाएगा, कलेक्टिवली उसमें से प्रोड्यूस निकाला जाएगा. सो पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड द लैंड अंडर द कम्यून सिस्टम. बट GLF had Great Leap Forward had many problems, like there was severe drought that killed around 30 million people. Along with that, when Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who were augmenting or helping China in their industry, setting up industries in the China. So 1950s में 1965 में क्या हुआ फिर, because of the drawbacks of Great Leap Forward, Mao Zedong, who was the leader of that time, he come up with another reforms that is called as Greater Proletarian Cultural Revolution. सो ये क्या था, इसमें क्या हुआ था, जो भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल थे उनको काम करने के लिए भेजा था फ्रॉम द सिटीज टू द कंट्री यार्ड. जो भी बैक रूरल एरियाज थे या भी जो भी इतने ज़्यादा इनएक्सेसिबल रीजन्स थे वहाँ पे जाके उनको काम करने को बोला था, सो दैट रीजन, द बैकयार्ड रीजन्स और कंट्री साइड रीजन्स कैन ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द सिटीज. बट अलॉन्ग विद दैट द मेजर रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस विच हेल्प चाइना वेयर इट इज नाउ. तो 1978 के जो रिफॉर्म थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. बिकॉज ऑफ दिस 1978 रिफॉर्म्स चाइना इज करंटली प्लेस्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो ये रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे, दिस रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन अ फेज मैनर. एक सरी के सारे रिफॉर्म्स नहीं लाए गए थे. इनिशियल फेजेस में जो भी जिस अरेना में दिस रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन, दैट वाज एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, जो भी कम्यून लैंड थी उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही थी, बट दैट कम्यून लैंड वाज गिवन टू द इंडिविजुअल फार्मर्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस ऑन दैट. और जितना भी प्रॉफिट निकल सकता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो दोज पीपल कैन टेक दैट. बट उसकी जो ओनरशिप थी वो दैट वाज स्टिल विद गवर्नमेंट, बिकॉज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सेटअप ही वही रहता है कि ओनरशिप विल बी ओन बाय द गवर्नमेंट. सो जो भी कम्यून लैंड थी दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स which were allotted to the individuals, and because of that the production जितना भी बढ़ा था उसमें से गवर्नमेंट का टैक्स कट करने के बाद जितना भी बचा था वो that individual farmer can take. मतलब वो जब एक कल्टिवेटर था, he was not the owner of that land. Second reform which was introduced was private sector firms को, जो भी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थे उनको एक परमिशन दिया गया था टू मैन्युफैक्चर सम गुड्स. जो भी गवर्नमेंट ने बोला था कि गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू द प्राइवेट सेक्टर दैट आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो और जो भी लिस्टेड प्रोडक्ट्स थे वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो. सो ये प्राइवेट सेक्टर जैसे आ गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के पास कंपटीशन चालू हो गया था. देयर वाज स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इन चाइना. अब तक जो भी स्टेट ही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे इंडिया में PSU था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वैसे चाइना में SOE था, स्टेट
स्टेट ऑपरेटेड इस्टेब्लिशमेंट्स, तो इनके बीच में कंपटीशन होने लग गया है। ऑब्वियसली हमने देखा है जब कंपटीशन होगा तब इफिशियंसी बढ़ेगा, इनोवेशन को बहुत ज़्यादा चालना मिलेगी और बहुत ज़्यादा नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफिशिएंट प्राइसेस पे आएंगे. So the second reform was allowing private sector to manufacture some goods and then allowing them to compete with the state-owned enterprises. Third is dual pricing. ये dual pricing क्या concept है? Dual pricing में क्या होता था? The government would set up that कि some quantity of products will be sold at the price determined by the government. कुछ एक amount है, समझो 100 products है, उसकी गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करेगा और उस प्राइस पे या तो इंडस्ट्री वालों को खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, और जो भी फार्मर्स है उनको या तो खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ड्यूअल प्राइसिंग वन वाज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ये जो भी रेगुलेटेड है उसके बाद जो भी बचेगा वो मार्केट से चलेगा. मतलब इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी फीलिंग कि कुछ सेक्टर, कुछ इकोनॉमी के पार्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स that their pricing was regulated by the government, but other than that all the products were regulated by the market. So that is, this concept is called as dual pricing. ये क्यों किया था dual pricing? To ensure that there will not be shortage of hoarding of the basic necessities which will be required by the population. जो भी बेसिक सप्लाईज थी उसको कंट्रोल किया था. अदर देन दैट बाकी सबको उन्होंने मार्केट के सप्लाई डिमांड के जो भी प्रिंसिपल्स रहते हैं जो हमने पहले देखे उसके हिसाब पे छोड़ दिया. दे विल डिटरमाइन द प्राइसिंग. So this was the third reform which was introduced, dual pricing. Apart from that, then export oriented अगर इकोनॉमी को बनाना है कि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे डोमेस्टिक नीड के लिए यूज करना, उसके बाद सारा एक्सपोर्ट करना. सो फॉर एक्सपोर्टिंग दे हैड इस्टेब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. इंडिया ने भी इस्टेब्लिश किए लेकिन बहुत लेट किए. हमारे एससीजीज आए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए आई थिंक 2005 में, और चाइना के 1978 में चालू हो गए थे. सो ये जो भी 25 या 30 साल का डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस विच इज स्टिल प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का पोटेंशियल तभी सेंस कर लिया था, एंड इन 1978 दे हैड स्टार्टेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. सो दिस वेर द 4 मेजर रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस इन द 1978 रिफॉर्म्स बाय चाइना. तो उसका असर क्या हुआ? We will study about what was the impact of these reforms when we will assess the pre-reform era and post-reform era of all 3 countries. तीनों कंट्री का देखेंगे हम in the last moment. Second was China. चाइना होने के बाद हम देखेंगे about पाकिस्तान. पाकिस्तान का भी सेम था, 1947 में उनको भी इंडिपेंडेंस मिला, and they had followed similar model of economic development like India. They also followed mixed economic model. Along with in mixed economy we see that there is coexistence of public and private sector. Public sector भी रहेगा, private sector भी रहेगा. Public sector will dictate कि कौन कौन से sectors will be covered by the private sector. Private sector क्या क्या produce कर सकता है, ये सारा mixed economy रहेगा. And along with that, जैसे हमने देखा था कि हमने भी पहले import substitution और import substitution पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि जो इंडिया में बन सकता है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है. सो पाकिस्तान आल्सो फॉलोड द सेम स्ट्रेटजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. दे हैड स्टार्टेड देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो पाकिस्तान में बन सकता है वो इंपोर्ट नहीं करने का, दैट वाज देयर पॉलिसी. तो पॉलिसी के लिए उन्होंने टूल्स क्या क्या यूज किए. फर्स्ट इज टैरिफ प्रोटेक्शन. टैरिफ मतलब क्या रहता है हमें पता है, टैक्स ऑन टैक्स. जो भी गुड्स आएंगे उस पर टैक्स लगाना. सो चाइना ने वही किया कि जो इंपोर्टेड गुड्स थे उन पे टैक्स लगाना चालू कर दिया टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स. सेकेंड इज डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स. ये क्वांटिटेटिव टूल है कि जितना भी इंपोर्ट आएगा उसको एक कोटा लगाना कि इतना ही आ सकता है इंपोर्ट, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते. मे बी यू कैन बाय 100 मोटर व्हीकल्स बाय इंपोर्ट, बट उससे ज़्यादा नहीं बुला सकते हो. सो दिस आर काइंड ऑफ टूल्स यूज बाय पाकिस्तान फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन उधर भी चालू हो गया था, एंड दे हैव आल्सो इंक्रीज देयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. हमने देखा कि इट इज मोर और लेस सिमिलर टू इंडिया. इंडिया ने जैसे किया था वैसे ही पाकिस्तान का चल रहा था, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आया वो 1980s के बाद आया. थर्डली इन 1970s इन्होंने क्या किया, अभी थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स चालू कर दिए. दे हैव स्टार्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. इंडिया में हमने देखा है कि 1969 में वी हैड नेशनलाइज्ड बैंक्स, along with that other nationalized we have nationalized other
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे. तो सेम वॉज केस विथ पाकिस्तान. इन द 1970s दे हैड नेशनलाइज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. बट द शिफ्ट पॉलिसी शिफ्ट कब आया? 1970s और 1980s में, when major thrust areas were denationalization and encouragement of the private sector. यहाँ से एक शिफ्ट आना चालू हो गया था 1970s और 80s में. देखा इन्होंने कि ठीक है, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को अपन बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट यील्डिंग. पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट स्टैग्नेट हो चुका है. सो इट इज टाइम टू हैव सम चेंजेस, टू हैव सम शिफ्ट्स इन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. सो इन्होंने चेंज क्या किया? दे हैड इनकरेज्ड डीनेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको बहुत ज़्यादा बाहर के जो वी कैन से दैट आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज एज वेल एज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था. अलॉन्ग विद दैट रेमिटेंस, दैट वाज मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पाकिस्तान. पाकिस्तान की बहुत सारी जनता, पॉपुलेशन मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाती थी, वहाँ पे ऑयल कंपनीज में या फिर दुबई, यूएई, कतार ये साइड में काम करती थी, और वहाँ से वहाँ के लोकल करेंसीज में मनी घर को भेजती थी. उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस. सपोज दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी. सो कंट्री बी इज द होस्ट कंट्री ऑफ दैट लेबर. ये बंदा कंट्री बी से कंट्री ए में गया, यहाँ पे काम कर रहा है, और काम करने के बाद जो भी अमाउंट वापस घर भेजेगा उसको बोलते हैं रेमिटेंस. और दिस रेमिटेंस बिकम्स द मेजर सोर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. वी नो अबाउट इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस हमने देखा 1991 में. जो बीओपी क्राइसिस हुआ उस पे हमें जब IMF से हमने लोन लिया था, दैट क्राइसिस हैपेंड बिकॉज वी लैक्ड इन फॉरेन एक्सचेंज. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज भी बचा नहीं था. दैट्स व्हाई रेमिटेंस एक्ट्स एज अ मेजर सोर्स फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. सो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस आ रहा था, एंड सेकेंडली रेमिटेंसेस फ्रॉम द मिडल ईस्ट. Along with that, it has given incentives to the private sector so that they can start manufacturing their own goods and products. Second is अभी हमने देखा कि बहुत चाइना एंड इंडिया, पाकिस्तान का देखा कि चाइना ने कैसे 1978 में रिफॉर्म्स चालू किए, पाकिस्तान ने कैसे रिफॉर्म्स चालू किए. सो चाइना के रिफॉर्म्स आए थे 1978 में, पाकिस्तान क्या है 1988 में, और इंडिया क्या है 1991 में. सो दिस क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब कब रिफॉर्म्स आए थे, और ये रिफॉर्म्स की वजह से ही हमें पता चलेगा कि आगे कैसे चीज़ें बदलती रही. अलॉन्ग विद दैट अभी इकोनॉमी हमने देख लिया, तो ह्यूमन इकोनॉमी का कैसे चल रहा था, डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैसे थे. तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में हम देखते हैं कि द टॉप 2 कंट्रीज, द मोस्ट पॉपुलस टॉप 2 कंट्री इन द वर्ल्ड आर इंडिया एंड चाइना. सो ऐसा बोला जाता है कि अगर पर 6 पर्सन देयर आर 2, इसमें से एक इंडिया का रहेगा, एक चाइना का रहेगा. जो भी वर्ल्ड में 6 लोग हैं उसमें से एक चाइना का रहेगा, एक इंडिया का रहेगा. दैट इज द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बोथ दिस कंट्रीज. अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है. वी कैन से दैट इट इज नियरली वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स फॉर ओनली 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया. इंडिया और चाइना की जो 1/10 है उतनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है. बट द प्रॉब्लम इज दैट चाइना में इतना ज़्यादा जियोग्राफिकल एक्सपांस है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी कैन अग्री, बट जियोग्राफिकल एक्सपांशन इतना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की डेंसिटी बहुत कम रहती है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज पीपल लिविंग इन दैट एरिया अपॉन द एरिया. सो एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वी अग्री, बट एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इफेक्टिव डेंसिटी बहुत कम आती है चाइना की कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में वी नो 17% ऑफ द people on this planet are from India, but only 2.4% of land is the Indian geographic terrain.
दैट्स वाई इंडिया में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, चाइना में डेंसिटी कम है. बट ऐसा जो भी है, इसमें एक सेकंड फैक्टर है कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है अभी. तो अभी हम देखेंगे तो करंटली पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, इंडिया का उससे कम है, एंड चाइना हैज़ द लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन ऑल दिस 3 कंट्रीज. तो इसका चाइना की कम कैसे हो गई? तो चाइना हैड फॉलोड वन पॉलिसी कॉल्ड एज वन चाइल्ड नॉर्म. इन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म में पॉलिसी लाई थी कि जो भी कपल है वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, बीट मेल और फीमेल. एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा तो गवर्नमेंट उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं देंगी, गवर्नमेंट सर्विस पे नहीं रखेंगी. दैट वाज द लॉ. सो बिकॉज ऑफ दिस वन चाइल्ड नॉर्म, चाइना को तब तो थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया, लेकिन दे आर फेसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दैट पॉलिसी नाउ. उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजेड हो रही है, उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, यंग एज पॉपुलेशन कम है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जो कि इंडिया का अभी एडवांटेज है. वी हैव मोर नंबर ऑफ यंग पीपल कंपेयर टू द डिपेंडेंट पीपल. सेकेंडली, वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से क्या हुआ? देयर इज डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो. सेक्स रेशो क्या रहता है? पर 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल्स है. सो बिकॉज गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग वन चाइल्ड नॉर्म, सो इट इज बिलीव दैट कि सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड को बहुत ज़्यादा चालना दी जाती है, बिकॉज everyone wants son. That's why in the one child norm it has seen that it impacted the sex ratio in a adverse way, because scholars cite that son preference availing in all these countries. तीनों कंट्रीज में son preference को बहुत ज़्यादा भाव दिया जाता था. चाइना की कंडीशन मैंने वही बोली कि आफ्टर फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन टू द यंग पीपल. एंड अभी चाइना ने वो पॉलिसी को रिवर्स किया है, बिकॉज दे वांट मोर यंग पीपल, सो दैट जितना ज़्यादा यंग पीपल रहेगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी. दैट्स वाई दे हैव अलाउड द कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन. अभी 2 चिल्ड्रन चलते हैं, पहले जो वन चाइल्ड नॉर्म था वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है. अलॉन्ग विद दैट फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है कि एक फीमेल ऑन एन एवरेज थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देती है. सो फर्टिलिटी रेट इस चाइना में बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज वी नो द रीज़न, वन चाइल्ड नॉर्म था और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स थे. और सबसे ज़्यादा हाई है पाकिस्तान में. अलॉन्ग विद दैट अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में वी नो कि 34% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरिया एंड ओनली 66% लिव्स इन द रूरल एरिया. सो अर्बनाइजेशन इंडिया में कम है, चाइना में बहुत ज़्यादा है. Along with that, other demographic indicators we can see here in this chart. This chart is very important. Population हमने देख लिया. India, it is believed that India will surpass China now, then China and then Pakistan. In density we know the density of Pakistan is very low. Density of China is very low. Then Pakistan and then India. In the sex ratio we can say that the sex ratio of India is 924. The sex ratio of China is 949 and Pakistan is 943. So इंडिया का सबसे लो सेक्स रेशो है. वी कैन सी दैट. क्यों है? तो हमारे यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, वी लिव इन अ पैट्रियार्कल माइंडसेट, सो फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स वाई द सेक्स रेशो इज लो इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलिटी रेट इंडिया में 2.2 है, चाइना में 1.7 है और हाईएस्ट इज इन पाकिस्तान 3.6. अभी 2.2 मतलब इंडिया, ये तो एनसीईआरटी का पुराना डेटा है. अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव इन इंडिया हैव अचीव्ड द 2.1% ऑफ द फर्टिलिटी रेट. 2.1% को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ रिप्लेसमेंट रेट. मतलब जितनी पॉपुलेशन है अभी उसको रिप्लेस करने के लिए जो लगेगा, जितनी पॉपुलेशन लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज टोटल रिप्लेसमेंट रेट. तो टोटल रिप्लेसमेंट रेट 2.1 कंसिडर किया जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने अभी ये अचीव कर लिया है. और ये 2.1 क्यों लेते हैं? 2 क्यों नहीं ले सकते हैं? दिस 0.1% इज फॉर द बफर. जो भी मतलब बिकॉज ऑफ एनी डिसीजेस और इलनेस, जो भी डेथ्स होंगे उसको कवर करने के लिए 2.1 कंसिडर किया जाता है. सो इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव अचीव्ड टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1% नाउ. China has gone beyond 2.1%. It has gone till 1.7. ये this denotes that कि चाइना की पॉपुलेशन अभी श्रिंक होती जाएगी. इंडिया की पॉपुलेशन कहीं जाके अभी थोड़े साल तक एक्सप्लोर करेगी, उसके बाद कंट्रोल में आ जाएगी, बिकॉज देयर इज मोमेंटम. इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक मोमेंटम.
दो वी हैव अचीव 2.1% एज अ टोटल रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारे एटलीस्ट 7, 8, 10 ईयर्स लगेंगे सो दैट टू स्टेबिलाइज आवर पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन हैपन्स इन अ मोमेंटम. जो ये मोमेंटम ब्रेक करने के लिए थोड़ा 8-10 साल का टाइम लगेगा. एंड पाकिस्तान इज स्टिल फार अवे. पाकिस्तान रिप्लेस फर्टिलिटी रेट इज 3.6. सो दिस पाकिस्तान पॉपुलेशन विल एक्सप्लोड एंड उसको कंट्रोल होने में अभी बहुत टाइम है. रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, 34% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज compared to 60% in China and around 37% in Pakistan. So India and Pakistan are, we can say that, near or less same in urbanization, and China is way ahead in 60% have urbanized population. Now, what is the composition of GDP of all these three countries? All the three countries are majorly agri-dominated, but इसके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूज की है सबने. सो नाउ देयर जीडीपी कंपोजिशन हैज चेंज, और ये कैसे कैसे चेंज हुआ, अभी क्या कंपोजिशन है, दैट वी विल सी. We know that China has the second largest GDP in the world, which is around 22.5 trillion, and India का जो GDP है, it is around only 9.3 trillion. पाकिस्तान का जो है उससे भी कम है, 0.94 ट्रिलियन है पाकिस्तान का. सो the GDP of India is around 11% of the Pakistan GDP is around 11% of India's GDP, and India's GDP is around 41% of the China's GDP. China is way ahead than both these countries. China का जो भी है, it is second largest economy in the world after USA. USA का around 28 ट्रिलियन डॉलर है I think, और चाइना का 22 ट्रिलियन डॉलर है, and India is around somewhere around 9.03 ट्रिलियन. चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड फ्रॉम 1978, इवन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर स्ट्रगलिंग टू अचीव 2% डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट चाइना ने ये पीरियड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ किया. 2% में 2 डिजिट में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ था, डबल डिजिट ड्यूरिंग 1980s, एंड इन द 1980s पाकिस्तान वाज अहेड इंडिया. सो दैट इज द शॉकिंग फैक्ट कि 1980s में पाकिस्तान हमारे बहुत ज़्यादा आगे था, बी इट इन एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर. लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसीज थे उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, मिलिट्री रूल आ गया. दैट्स वाई 2015-17 के अराउंड पाकिस्तान द इकोनॉमी इन पाकिस्तान वाज इन डिक्लाइन. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन. इंडिया इन द 1980s द ग्रोथ रेट वाज 5.7% एंड अभी हमारा 7.3% है. सो देयर इज इंक्रीज. बट चाइना का पहले 10.3% था एंड नाउ इट इज 6.8%. 1980s में चाइना was the largest growing economy, fastest growing economy, and currently we know India is the fastest growing economy. Thirdly, पाकिस्तान का पहले 6.3 था 1980s में, लेकिन अभी ये कम हो गया. बीच में तो बहुत कम हो गया था, अभी थोड़ा पिकअप कर रहा है, 5.3% पे आ चुका है अभी इन 15-17. अभी एग्रीकल्चर की सिचुएशन कैसी है? पाकिस्तान चाइना का इतना सारा टेरेन है, लेकिन बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट इसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है, जो यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, तो जो भी टेरेन है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है फॉर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर. दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ चाइना इज लेस देन इंडिया. इंडिया से कम है कल्टिवेबल लैंड इन चाइना. ये प्रीलिम्स
2023 का क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट था कि चाइना का एरिया वाज लार्जर देन इंडियाज कल्टिवेबल एरिया। ये उन्होंने गूगली डाली थी, सबको लगा था कि चाइना सबसे बड़ा है इसलिए चाइना का ज़्यादा होगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस। बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन द लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर इज वेरी लेस कंपेयर टू इंडिया इन चाइना। ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स एरिया, टोटल लैंड एरिया इज अंडर कल्टिवेशन। सो द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स 40% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। इंडिया में जितना है उसका सिर्फ 40% है चाइना का। सो दैट इज द मेजर फैक्ट। लेकिन स्टिल द एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो चाइना में ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया। अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनॉन कि जब इनिशियल पाकिस्तान चाइना को इंडिपेंडेंस मिला था तब अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड नाउ अभी करंटली अराउंड जस्ट 26% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दिस इज अ ग्रेट लेसन। इंडिया हैज फेल्ड टू फेस इट्स पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड engage them in other sectors like services as well as manufacturing. एंड चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है टू द एग्रीकल्चर इज अराउंड 7%, बिकॉज अभी मेजोरिटी ऑफ द उनका शिफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे गया है। इंडिया में अराउंड 18% है। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज अराउंड 16% एंड 24%. द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क्स इन इंडिया इन दिस सेक्टर इज मोर इन इंडिया। अभी हम अगर देखा जाए तो करंटली इंडिया का 43% वर्क्स इन एग्रीकल्चर, around 41% of Pakistan works in agriculture and around 26% of China workforce work in the agriculture sector, and there is substantial decrease in China from agri to non-agri sector. The workforce has moved from agri to non-agri, but India में इतना ज़्यादा difference नहीं आया है, and that is the main reason कि हमारा country अभी भी developing state में ही है। हम एग्रीकल्चर में से पॉपुलेशन निकाल के मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में उतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाए। मे बी द रीज़न इज हम वहाँ पे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और मे बी द रीज़न इज कि हम एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं ला पाए कि दैट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो दिस चार्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया GVA in 1819 was 16% and distribution of workforce is 43%. सिर्फ 16% आ रहा था, लेकिन पीपल एंगेज वेयर 43%, और जो बचा हुआ 84% है दैट वाज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंड उसमें ओनली 57% लोग काम कर रहे थे। सो दिस डाइकोटोमी इज व्हाट इज हॉन्टिंग इंडिया। अगर सिर्फ 16% आ रहा है तो दैट पॉपुलेशन शुड कम डाउन, दैट शुड डिक्रीज एंड मोर पीपल शुड कम टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, दैट इन टर्न विल लीड टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। चाइना का देखो, ओनली 7% ऑफ द चाइना GDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अराउंड 26%, ओनली 26% ऑफ चाइना's पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान का केस समवॉट सिमिलर टू इंडिया है, 24%, लेकिन इट इज बेटर देन इंडिया। 24% आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अराउंड 41% ऑफ द वर्कफोर्स आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री वी कैन से दैट चाइना का कंपैरिजन इंडिया के साथ करेंगे हम कि इंडिया का 30% GDP का शेयर आता है फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अराउंड ओनली 25% आर एंगेज इन दैट सेक्टर, वेयर एट चाइना का 41% आता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड 28%, मतलब सिर्फ 28% लोग ये, इसका इंडिया का 25 है, चाइना का 28% है। लेकिन ये डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन ये डिफरेंस 11 का है। Why this happens? Because China has technical expertise. चाइना के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि एक लेबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वी हैव अर्लियर स्टडीड ऑल्सो कि जितने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा। इट इज़ द सेम डिफरेंस कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स में 3% का डिफरेंस है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू GDP में जो कंट्रीब्यूशन है इसमें देखो 11% का डिफरेंस है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज विच चाइना ब्रिंग्स। नाउ इन द सर्विस सेक्टर एज वेल, इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द GDP कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर, अराउंड 54% ऑफ द शेयर ऑफ GVA कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर, एंड पॉपुलेशन एंगेज इज अराउंड 32%। ये देखो सिर्फ 32% होके भी 54% ला रहे हैं। चाइना में भी 54% है, 52% है, लेकिन पॉपुलेशन एंगेज इज अराउंड 46%। सो सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत ज्यादा कंपिटिटिव है कंपेयर टू चाइना, बिकॉज वी हैव सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर एंड विच आर अवेलेबल एट चीप प्राइसेस। सो सर्विस सेक्टर इंडिया का एफिशिएंट है कंपेयर टू चाइना, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ चाइना इज वे अहेड कंपेयर टू इंडिया।
अभी पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का अराउंड 19% ऑफ जीवीए कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अराउंड 24% आर एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री सेक्टर, 57% comes from services and around 35% are engaged in the service sector. So जो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि कंट्रीज कैसे शिफ्ट करती है उनका इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी. कोई भी कंट्री जो भी लीस्ट डेवलप्ड है वो एक डेवलपिंग कंट्री बनती है एंड देन दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो ये सारी कंट्रीज पहले एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होती है या इंडस्ट्री एंड देन दे शिफ्ट टू सर्विस सेक्टर. अगर किसी भी आइडियलिस्टिक सिनारियो में अगर शिफ्टिंग चाहिए एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विसेज तो प्रॉपरली प्लान्ड इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि दे हैव अचीव्ड दैट. चाइना का मोर और लेस चाइना हैज अचीव्ड कि उन्होंने एग्रीकल्चर में से पॉपुलेशन को शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग से अभी वो सर्विसेज में एक्सपोर्ट करने लग गए. बट इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या हुआ, दे हैव जंप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर. ये मैन्युफैक्चरिंग वाली जो स्टेप है वो स्किप हो गई है इंडिया के. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स में हमने सर्विस सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस किया था, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिल पाया. द पॉलिसीज वे आर मोर फेवरेबल फॉर सर्विस सेक्टर, दैट्स वाई सर्विस सेक्टर का बूम हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गॉट डिप. उसका ज्यादा जो पहला उसका प्री रिफॉर्म एरिया जिसका ग्रोथ रेट था वही आज भी चल रहा है. So countries first shift their employment and output from agriculture to industry and then to services. लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान के भी साथ नहीं हुआ. The shift is taking place directly to service sector in Pakistan and China. हमने पहले भी बोला कि 1980s में पाकिस्तान was faster in shifting its workforce to service sector. पाकिस्तान was growing, but problem ये हुआ कि पाकिस्तान के बाद में जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, पॉलिटिकल चैलेंजेस आए, उसकी वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ रेट लैग हो गया. अगर हम देखा जाए पाकिस्तान का बाकी सारे कंट्रीज का सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो 1980s में अराउंड 12% ऑफ द पॉपुलेशन वाज in 1980s around 12% of Pakistan population was engaged in service sector and now it is around 46%, whereas India का पहले 17% था, अभी 32% है, एंड चाइना का पहले 27% था, अभी 35% है. सो पाकिस्तान हैज बीन एबल टू पुश इट्स वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, बट व्हाट इज मिसिंग कि मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज़्यादा पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाया या डेवलप नहीं कर पाया. अभी लुक एट दिस चार्ट. अगर हम देखें कि 1980s 90s में और 2014-18 में क्या हुआ, इंडिया का जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था वो 3.1% था एंड करंटली इट इज ऑल्सो 3.1%. तो एक स्टैग्नेशन आ चुका है एग्रीकल्चर में, ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं रहा है. सेकेंडली चाइना का देखो पहले 5.9% था, अभी 3.1% पे आ गया, तो चाइना का डिक्लाइन हो गया. लेकिन इसको कंपेंसेट किया इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में. पाकिस्तान का पहले 4% था, अभी 1.7% है. तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज मोर डिस्ट्रेस कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया. सेकेंडली इंडिया का जो इंडस्ट्री का पोर्शन था वो 7.4% से ग्रो कर रहा था, अभी इसका देखो पहले 7.4% था प्री रिफॉर्म्स, 1991 में रिफॉर्म आ गए तब 7.4% था एंड अभी 6.9% है. तो मोर और लेस सिमिलर ही चल रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं हुआ. सो दिस स्टैग्नेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इम्पैक्टिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. वही चाइना का देखो पहले 10.8% था, जहां की डबल डिजिट ग्रोथ आ रही थी और यहीं पे चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम हो गई थी. अब ये डिक्लाइन हो गया, 5.3% पे आ गया, लेकिन स्टिल चाइना हैज अचीव्ड दैट ओवरआर्चिंग ग्रोथ. अभी उन्होंने ग्रोथ रेट अचीव कर लिया था एंड नाउ दे आर स्टेबिलाइज. वी कैन से दैट सेकंड फास्टेस्ट, नाउ आल्सो यू कैन से दैट दिस इकोनॉमी इज राइजिंग. इंडिया करंटली तो इंडिया सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना को सरपास करके, लेकिन ये जो 1980s 1990s का पीरियड था वो 10-20 साल, वहां पे चाइना ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली थी. वो अचीव करने के लिए हमें अभी 20 साल लगेंगे और. एंड अगर पाकिस्तान का देखा जाएगा तो अराउंड 7.7% 1980s के पहले था मैन्युफैक्चरिंग का, अभी 4.8% है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो इन अ डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स. एग्रीकल्चर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसलिए चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुकी है एंड द इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस. सो नाउ इन द सर्विस सेक्टर इंडिया का पहले प्री रिफॉर्म्स 6.9% था, अभी ये 7.6% है. सो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ रेट इज बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर. सेकेंडली चाइना का 13.5% था, दैट इज वेरी मच इंप्रेसिव ग्रोथ रेट.
प्री इन 1980s में 13.5% का था, अभी भी 7.1% है. Considering the current circumstances and current competition, 7.1% is still a good growth rate. Thirdly, पाकिस्तान का पहले 6.8% था एंड अभी ये भी कम हो गया, 5% पे आ गया. सो इट डिनोट्स दैट कि चाइना ने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अचीव कर लिया है एंड नाउ द इकोनॉमी स्टेबल. यस, इट इज एक्सपांडिंग बट एट अ लो पेस. इंडिया का ऐसा है कि इंडिया हैज टेकन दैट लीप फॉरवर्ड इन अ लेटर पीरियड इन 1990s, बट नाउ द कंट्री इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो कि हमें अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है. सो वी विल अचीव आवर गोल्स इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. But the problem is with the Chinese Pakistani economy. Its agriculture is in dismal state of affairs. Industry भी बहुत ज़्यादा stress में है and service sector is also not booming. So that's why Pakistani economy is in shatters. और इसकी reason जितने इकोनॉमिक है उतने ज़्यादा पॉलिटिकल है, उतने ज़्यादा सोशल भी है. सो जब भी आप पढ़ोगे पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तब आप देखोगे कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल ऑर्थोडॉक्सी हैज लीड टू dismal state of affairs in the economy for Pakistan. Now human development में क्या सिनारियो है ये तीन कंट्रीज का, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है रैंक है, चाइना इज एट 87, which is we can say that it is considerably good. India is at 130 and Pakistan is in the worst case in more than 150s. India is still not the good country. We can say that it is at the back end, but it is performing better than Pakistan. Along with that, life expectancy at birth, India में 69.7% है, China में ज़्यादा है 77%, 77 ईयर, एंड पाकिस्तान में 67% है. तो इंडिया और पाकिस्तान में नियर अबाउट सेम है, 67 ईयर. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस दिखेगा. चाइना का पर कैपिटा इनकम देखो 16%, 16,000 रुपये है, पाकिस्तान का 5,000 है, इंडिया का 6,600 है. सो ये पाकिस्तान और इंडिया और चाइना में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इंडिया और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. एंड इट इज सेड दैट स्टिल चाइना कंसिडर्स देमसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री. इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी चाइना हैज़ टू बी अ डेवलप्ड कंट्री. चाइना को डेवलप्ड कंट्री का टैग मिलना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द WTO रूल्स कि जो भी कंट्री खुद को जैसा बोलना चाहेगी, या तो डेवलप्ड या डेवलपिंग, इट डिपेंड्स ऑन वो कंट्री की मर्जी. दैट्स व्हाई चाइना स्टिल वो तुंतु ना लेके घूमती है कि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. बट वी कैन सी दैट द कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड चाइना. एंड चाइना और पाकिस्तान की इनकम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वी कैन सी दैट. एंड दैट इज व्हाट ये क्या डिनोट करता है, क्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये डिनोट करता है सीधा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितना ज़्यादा पॉवर्टी है, कैसी सिचुएशन है हेल्थ की, एजुकेशन की, सैनिटेशन की. सो चाइना का बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम. दैट्स व्हाई द सोशल सर्विस सेक्टर आर ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड. दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव हेल्थ, एजुकेशन, बट दैट इज नॉट द केस विद इंडिया एंड पाकिस्तान. बीपीएल में क्या है, पॉवर्टी लाइन में कितने लोग हैं, तो इंडिया में अराउंड 22% है, पाकिस्तान में अराउंड 24% है, एंड जस्ट 1.7% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन इन चाइना. एंड इसका रीजन क्या है, ये नेशनल पर कैपिटा नेशनल इनकम डिनोट्स दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड इतना ज़्यादा पर कैपिटा होने के साथ साथ ये बताता है कि इसी वजह से पॉवर्टी कम है. सो अगर इंडिया को पॉवर्टी कम करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि इंडिया को पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा. जब इनकम बढ़ेगा तभी जाके पॉवर्टी कम होगी. We were talking about human development, but human development के में क्या ये सिर्फ इतने सारे इंडिकेटर्स है, यही इंपॉर्टेंट है क्या, ये जो भी इंडिकेटर्स है, अगर ये इंडिकेटर अच्छा है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? नो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, इट ऑल्सो हैज अ क्वालिटेटिव एनोटेशन टू इट. सो क्वालिटेटिवली क्या है, क्वालिटेटिवली मतलब जो भी लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं उनके बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रहे क्या, उनके बाद उनको लिबर्टी ऑफ थॉट है क्या, उनको डू दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
उनको जो बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं क्या, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या, देन ये सब अगर रहेगा तभी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे लोग जो भी रह रहे हो हैप्पीली रह रहे हैं। जैसे कि भूटान में है, दे मेजर देयर जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। सो चाइना का जो इसको जो भी बोलते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या कि नहीं है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे को कहते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑन दिस फ्रंट चाइना इज लैगिंग वेरी बिहाइंड, बिकॉज चाइना में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, दे फोर्सफुली enforce the rules and regulations on the people, they do not give them permission to freely speak and have their freedom of speech and expression. So liberty indicators मतलब क्या है? The extent of democratic participation in the social and political decision making of the citizens of that country. It has taken into the consideration of while calculating human democratic index, but उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है, एक्स्ट्रा वेटेज दिया ही नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बाकी के लिबर्टी इंडिकेटर्स है, लाइक एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, इनको तो इंक्लूड ही नहीं किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। सो जब तक हम ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे लिबर्टी इंडिकेटर्स, वी विल नॉट गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। That's why अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है, that is not a holistic concept, that is not a comprehensive concept, it does not denotes the qualitative aspect of human development. अभी हम एक एनालिसिस करेंगे जो भी डेवलपमेंटल पाथ तीनों कंट्रीज में लिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो वहाँ से जो पाथ लिया था, वहाँ से लेके आज तक की उनकी जर्नी हमने देखी कैसे हुई, लेकिन उसका एनालिसिस कैसे था, वॉज दैट जर्नी फ्रूटफुल जर्नी और वेस्टफुल जर्नी, वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो हमने देखा कि रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1978 इन चाइना, 1988 इन पाकिस्तान एंड 1991 इन इंडिया। सो प्री रिफॉर्म इरा कैसा था और पोस्ट रिफॉर्म इरा कैसा था, इसको हम थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे। फर्स्टली हमें देखना है कि जो रिफॉर्म्स लाने थे चाइना को 1978 में ही क्यों लाए, उसके पहले क्यों नहीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, उसके बाद प्रोलेटेरियन स्कीम आई थी, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो 1978 में रिफॉर्म्स लाने का काम क्या था, जो नई लीडरशिप आई थी एट दैट टाइम, दे वर नॉट हैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ ग्रोथ। स्लो पेस ऑफ ग्रोथ जो थी एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द चाइनीज इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल, माओ जेडोंग का जो रूल था उसके अंडर जो भी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी उसका स्लो ग्रोथ रेट था। सो द लीडरशिप वाज नॉट हैप्पी विद दैट मॉडल। उन्होंने देखा कि एट द सेम टाइम प्री रिफॉर्म इरा में जो भी थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, सेल्फ सफिशिएंसी आ रही थी, शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल, ये सारा फेल्ड हो गया था। इससे क्या हो रहा था, इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ से बढ़ नहीं रही थी। तो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट इन 1978 वाज एट द सेम लेवल एट दैट ऑफ 1950s। 1950s में जितना ग्रेन आउटपुट हो रहा था उतना ही 1978 में था, तो ग्रोथ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड अलॉन्ग विद दैट ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म इरा जो थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, देन लैंड रिफॉर्म लाए थे कम्यून में, देन लॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, existence of small enterprises, it has helped positively to boost social and income indicators in the post reform period. So इनका ऐसा था कि जो रिफॉर्म्स है हमें इनमें से ये लाना है, ये सारे रिफॉर्म्स लाना है। वन इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, सेकंड इज लैंड रिफॉर्म, देन लॉन, देन डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, देन स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये सारा लाने के बाद अच्छे से रिफॉर्म्स बनेंगे। In the pre-reform era, they had also noticed that कि massive extension of basic healthcare services in the rural areas, along with that more equitable distribution of food grains. इसके वजह से एक prosperity आ रही थी rural areas में। So each reform measure was first, they had started these reforms कि हमें ऐसे सारे social development reforms लाने हैं and they need to be planned on a country wide basis, but directly हमें नहीं करना है, हमें स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट्स पहले लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे पॉकेट्स में उसको टेस्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर टेस्टिंग देम देन वी कैन स्केल देम एट द कंट्री लेवल और नेशनल लेवल। जैसे हमने देखा
कमिन सिस्टम में जो भी डिफरेंस लाया था कि हैंडलिंग ओवर द प्लॉट्स ऑफ लैंड टू द इंडिविजुअल कल्टिवेशन individual cultivator, it brought prosperity to vast number of people. Along with that, there was phenomenal growth in the rural industry and build up strong support base for the reforms. ये सारे जो प्री रिफॉर्म था इसको यूज करके ही उन्होंने रिफॉर्म्स लाए. एंड द सेम वेंट अहेड विद पाकिस्तान एज वेल. Pakistan realized that their economy was in very much dismal state and they had indicated rising poverty there. The proportion of poor, अभी भी पाकिस्तान का जो चल रहा है कि बीच में तो उनका अच्छा पीरियड आ गया था, ग्रोथ रेट अच्छे से बढ़ गया था, लेकिन करंटली नाउ दे आल्सो फेसिंग दैट इकोनॉमिक क्राइसिस. तो जो ग्लोबल एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से जो बताया जाता है कि पाकिस्तान की पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन still it is said that the proportion of poor in the 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and अभी फिर से बढ़ने लग गया. 40% था, then 25% हो गया and now still increasing. बीच में कम हो गया था लेकिन अभी फिर से बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन जो भी पाकिस्तान का था, वो क्राइसिस जो आता है एग्रीकल्चर में पाकिस्तान का, उस क्यों आता है? पाकिस्तान का जो भी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन था, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन कोई इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, उस वाज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक. इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया 2013 में, बफर स्टॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वेयर हाउसेस है, नाफेड है. सो ये सारी इंस्टीट्यूशनलाइज सोसाइटीज है, उसके बाद नाबार्ड है. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एक बफर स्टॉक बन गया है. एंड इफ देयर इज एनी कैलामिटी और uncertain circumstances, then we have enough amount of buffer stock to manage that uncertainty in the market, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है. पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बफर स्टॉक नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है टू मैनेज द क्राइसिस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स नहीं है. दैट्स व्हाई पाकिस्तान इकोनॉमी इज जनरली फेसिंग क्राइसिस. आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो एवरी 2 or 3 days और एवरी मंथ देयर इज आर्टिकल अबाउट द शैटरिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ शैटरिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. अभी ग्रोथ रेट कैसे हो रहा था? द ट्रैजेक्टरी विच ऑल दिस कंट्री ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन कंट्रीज की कैसी रही? हमने देखा कि 1970s तक ये सारी कंट्रीज मोर और सिमिलर थी, इनका पर कैपिटा इनकम सिमिलर था, इनका ग्रोथ रेट सिमिलर था. लेकिन 1970s में जो भी रिफॉर्म्स आए इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए एंड इट हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस कंट्रीज. अभी हमने देखा कि चाइना का पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, इंडिया का मिडल है और पाकिस्तान का बहुत कम है. सो इसका क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? तो चाइना ने क्या किया, एक स्मूथ ट्रांजिशन किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर. इंडिया हैज जंप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, बट इंडिया हैज स्टेबल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. सो वी हैव अ स्टेबल और ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर. लेकिन चाइना का कैसा है? चाइना का एक्सपोर्ट सेक्टर इज नॉट दैट मच डाइवर्सिफाइड. चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रहता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आता है. अगर डोमेस्टिक सप्लाई अच्छे से नहीं बना, डोमेस्टिक पीपल के लिए एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस नहीं है, तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? सो देयर इज बिग फ्लक्चुएशन इन द एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंपेयर टू इंडिया. एंड दैट्स वाई वो फ्लक्चुएशन जो है, लेस डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपोर्ट बास्केट का. सो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड ही नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? द सेकंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान इज रेमिटेंसेस. जो भी लोग पाकिस्तान से जाके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, दे सेंड द रेमिटेंसेस बैक होम. तो वो लोग जितना भी रेमिटेंस वापस भेजते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज डेप्ट है फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द फॉरेन कंट्रीज. तो वो डेप्ट का इंटरेस्ट पेमेंट करना, उसका सर्विसिंग करना, उसमें ही बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यूज हो जाता है. दैट्स वाई पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें आते रहते हैं. एंड दैट हैज़ लीड टू low economic development of Pakistan and which in turn reflects in the low per capita income of Pakistan. लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एनुअल प्लान ऑफ 1920 ऑफ पाकिस्तान, दैट रिपोर्ट्स द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.5%, which is
इम्प्रेसिव इन द लास्ट डिकेड में जितना था उससे तो इम्प्रेसिव है. सो वी होप दैट पाकिस्तान विल कंटिन्यू ऑन दिस पाथ, द राइजिंग पाथ, अच्छे से इकोनॉमी को ग्रो अप करेगा. दे हैव डिमांडेड बेल आउट्स फ्रॉम द IMF से बहुत ज़्यादा लोन मांगे उन्होंने. आई होप दे विल यूज दैट लोन इन अ गुड स्पिरिट, गुड मैनर, एंड दे विल ग्रो एज लाइक इंडिया इज ग्रोइंग. सो कंक्लूजन में क्या है कि टिल 1970s में ऑल ऑफ देम वेर मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, शिफ्ट आ गया. चाइना ऊपर चला गया, पाकिस्तान नीचे चला गया. इंडिया परफॉर्म मॉडरेटली, इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, बहुत ज़्यादा लो भी परफॉर्म नहीं किया. सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या हुआ, पाकिस्तान क्यों ग्रो नहीं कर पाया अच्छे से? रीजन वेयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी रूल रहता था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर में आज तक 5 साल कंप्लीट नहीं किए पाकिस्तान में. सेकेंडली ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे. एंड फॉरेन एड जो भी इंटरनेशनल लोन्स रहते थे उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे. वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, थोड़ा सा फेमाइन आ गया कि चला गया सब कुछ, आर द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी. अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि चाइना इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. चाइना के जो कंसर्न्स है, द कंसर्न्स आर दैट लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द ह्यूमन राइट. लोगों को बहुत ज़्यादा से नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड वे में रहना पड़ता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. बट चाइना ने अच्छा क्या किया, तो उन्होंने एक मार्केट मैकेनिज्म स्टार्ट किया था टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. हमने देखा ड्यूअल प्राइसिंग रहता था कि कुछ फिक्स कोटा, फिक्स प्राइसिंग पे लेना पड़ता था. अपार्ट फ्रॉम दैट एक मार्केट सिस्टम चलती थी, वहाँ से डिमांड सप्लाई पे चलता था. सो अलॉन्ग विद दैट द कलेक्टिव ओनरशिप रहती थी कम्यून की, पब्लिक इंटरवेंशन रहता था बाय प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो चाइना ने कुछ गुड स्टेप्स भी लिए थे, लेकिन द निगेटिव पॉइंट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी इज दैट इट हैज कम्युनलिस्टिक बिहेवियर विच इम्पोजेस इट्स पॉलिसीज ऑन द गवर्नमेंट रादर देन हैविंग अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. सो वी नीड टू टेक फ्यू पॉजिटिव्स फ्रॉम द चाइना कि हमें कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है. अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू थिंक अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. अभी भी हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू फोकस ऑन आवर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. So these are some positives we can take from China to develop our economy in a most democratic possible. So that was all about this lecture. We compared Indian economy with the Chinese economy and the Pakistan's economy, and till 1970s both the countries had near about same growth rate as well as same human development indicators. But उसके बाद जो भी रिफॉर्म्स आए थे उन्होंने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को चेंज किया था. चाइना जंप टू इन द अपर रेंज, पाकिस्तान हैज फॉलोड इन द लोअर रेंज, एंड इंडिया इज स्टेडीली स्लो बट स्टेडीली ग्रोइंग. बट विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच वी हैव till 2027 और 2047 we have a developed path. तो वहाँ तक अगर हमने ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज किया, so that will be a fuel for developed India. So that's it from this lecture. Now we have 2 lectures remaining. One is sustainable development and second is unemployment. So we will see sustainable development in the next lecture, and unemployment we will see next to that lecture. Thank you very much. Thank you for listening patiently. Have a good day.